नमस्कार दोस्तों, पल चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी अगली यात्रा बिलासपुर जिले की ओर है, जहां हम साथ में जिले की महत्वपूर्ण रूपरेखा को खोजेंगे। इस एपिसोड में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, तो तैयार रहिए जब हम बिलासपुर जिले की खोज में निकलेंगे। बिलासपुर formed as a district on 1st July 1954. Total area 1167 square kilometers, that is 2.10% of total area of Himachal Pradesh. Total population according to 2011, the total population of district Bilaspur is 3,81,000, that is the 5.56% of total population of Himachal Pradesh. District headquarters Bilaspur. Population density in 2011 327. Sex ratio in 2011 is 981. Literacy rate in 2011 is 84.59%. From 2001 to 2011, population growth rate of Bilaspur is 12.05%. Total village 1061. Populated village 965. Gram Panchayats 151. Development blocks 3. Assembly constituency 4. Infant sex ratio in 2011 is 900. Rural population according to 2011 is 3,56,930, that is 93.43% of total population. Hills of Bilaspur district. First of all, Naina Devi Hill. On this hill is the temple of Naina Devi Ji. Kot Kehlur Fort and Fatehpur Fort are situated on this hill. Kot Dhar. Dhar Bashetu Fort is located in Kot Dhar. Jhanjiyar Dhar. Shirkhar divides it into two parts. There is a temple of Gugga and goddess Badoli here. Now Bahadurpur Hill or Bahadurpur Dhar. Bahadurpur Fort is located here, which is the highest place in Bilaspur. Due to its height at Bahadurpur Fort was the summer residence of King Bijay Chand. Ratanpur Dhar. On this hill lies the Ratanpur Fort, in which David defeated Gorkha commander Amar Singh Thapa. Bandla Dhar. This stream is 17 km long. Tune Dhar. Tune Fort, Pir Bhanu Temple, Shun Fort and Narangarh Fort are situated on this hill. About rivers. Satluj. Satluj river enters Bilaspur from Kasol, from Mandi and Naila village Bhakhra, enters Bilaspur and enters Punjab. Alikhad, Gambhar and Sirkhad in the Bilaspur district are the major tributaries of the Satluj. Shirkhad. Shirkhad is the largest tributary of Satluj in Bilaspur. A Sukarkhad is found near the Balghar in the Sirkhad. Sirkhad enters Bilaspur from Hatwad and joins the Satluj near Seri. Gambharkhad. Gambharkhad leaves from Shimla, Tara Devi district and enters Bilaspur from the village of Neri. The Gambharkhad is found in Satluj near Dangran. Alikhad. Alikhad leaves from the Arki of Solan and enters Bilaspur from Kothi Harar. The Alikhad joins the Satluj near Beri Ghat. Now talking about tank. Jagat Khana tank and Swarghat tank. इन दोनों तालाबों का निर्माण राजा हीराचंद जी ने 1874 ईस्वी में करवाया था। संगवाना टैंक, इस तालाब का निर्माण राजा विजय चंद ने करवाया था। इसके अलावा टैंक कसोल, टैंक जमथल, टैंक रिवालसर और टैंक नैना देवी भी बिलासपुर में स्थित है। जिला बिलासपुर की 3 प्रमुख घाटियां हैं: सतलुज घाटी, चौंटो घाटी, डेविन घाटी, बहादुरपुर और बंगला घाटी के भी स्थित है। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। ऐसा कहा जाता है कि राज्य के संस्थापक वीरचंद को एक पत्थर की पटिया के नीचे देवी दुर्गा की एक मूर्ति मिली थी और कुछ दिनों के बाद उसी स्थान पर कहलूर नाम के एक गुज्जर ने देखा कि उसकी एक बकरी ने तेंदुए पर हमला कर दिया जब उसने उसका शिकार करने की कोशिश की। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस चमत्कारी स्लैब के रहस्य को समझा और एक किला बनवाया और कहलू के नाम पर इसका नाम कोट कहलू रखा गया। नैना देवी मंदिर का निर्माण मूर्ति के लिए किया गया था।
राज्य के संस्थापक राजा वीरचंद थे, जो बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत परिवार से थे। हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर। राजा कहलचंद, वह शासक परिवार के छठे वंशज थे और कहा जाता है कि उन्होंने कोट कहलूर किला बनवाया था, लेकिन अन्य विवरण के अनुसार इसे वीरचंद ने बनाया था। राजा अजीत चंद, हिंदूर नालागढ़ के शासक, राजवंश की स्थापना की और अपने भाई सुचेत चंद को नया राजवंश सौंप दिया। राजा मेघचंद, राजा मेघचंद एक अत्याचारी शासक था और लोगों ने उसे राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उसने कुल्लू में शरण ली और बाद में उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की मदद से अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। राजा अभिसंत चंद, वह सिकंदर लोदी का समकालीन था। उन्होंने तातर खान अमीर के खिलाफ विजय लड़ाई लड़ी। बाद में राजा और उनके बेटे सुंदर चंद को तातार के बेटे ने धोखे से मार डाला। राजा संपूर्ण चंद, उनकी हत्या उनके भाई रतन चंद ने की थी। गद्दी के लिए भाई की हत्या करना हिंदुओं में यह एक दुर्लभ मामला था। राजा ज्ञानचंद या अयमचंद 1570, वह अकबर के समकालीन थे। उन्होंने इस्लाम अपना लिया। उनकी कब्र आज भी पंजाब के कीरतपुर में है। उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा बिगचंद हिंदू रहा, लेकिन छोटे बेटे रामचंद और भीमचंद ने भी इस्लाम अपना लिया। बिगचंद का विवाह कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद 1600 से 1612 की बेटी से हुआ। राजा बिगचंद, जब वह गद्दी के उत्तराधिकारी बने और उनकी 2 पत्नियां थीं, वह कांगड़ा से थी जिसने सुल्तान चंद को जन्म दिया और दूसरी भागल से थी जिसने केशव चंद को जन्म दिया। राजा ने 1620 में सुल्तान चंद को राजगद्दी छोड़ दी। राजा कल्याण चंद 1630, उनका विवाह सुकेत के राजा की पुत्री से हुआ था। कल्याण चंद ने 2 रियासतों के बीच युद्ध का नेतृत्व किया, जिसमें हिंदूर के राजा की मृत्यु हो गई। राजा दीपचंद, दीपचंद ने 1654 ईस्वी में अपनी राजधानी सुनानी से बिलासपुर की गुफा के पास स्थानांतरित कर दी। बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 ईस्वी में दीपचंद चंदेल ने की थी। दीपचंद ने ढोला महल का निर्माण करवाया। दीपचंद ने ही राजा को जयदेवा, राणा को राम राम और मियाँ को जय जय जैसी अभिवादन प्रणालियाँ भी शुरू की। राजा दीपचंद की 1667 ईस्वी में नदौन में कांगड़ा के राजा ने भोजन में जहर देकर हत्या कर दी। राजा भीमचंद 1667 ईस्वी से 1712 ईस्वी, जब उनके पिता दीपचंद की मृत्यु हुई तब वह नाबालिग थे। उन्होंने दीपचंद के भाई मानक चंद के साथ युद्ध लड़ा, जिन्हें राजमाता जलाल देवी ने वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया था। भीमचंद को मंडी के सिद्ध सेन का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने 1682 से 1685 में गुरु गोविंद सिंह के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी। 2 युद्धों का कारण गुरु का एक सफ़ेद हाथी था, जिसकी मांग भीमचंद ने की थी। वह युद्ध हार गए और अपने जीवन के अंतिम वर्ष फ़कीर के रूप में बिताए। अजमेर चंद 1712 से 1741 ईस्वी तक, उन्होंने हिंदूर की सीमा पर अजमेरगढ़ नामक किला बनवाया। राजा देवीचंद 1741 से 1778 ईस्वी तक, राजा देवीचंद, उनके शासनकाल के दौरान उनके पड़ोसी राज्य नालागढ़ में विद्रोह हुआ, जहां राजा मानचंद और उनके पुत्र की हत्या कर दी गई। गजय सिंह को राजा देवीचंद द्वारा हिंदूर नालागढ़ का नया राजा नियुक्त किया गया था। वह नादिर शाह का समकालीन था। उसने भमाई कोट का किला बनवाया और रामगढ़ किला हिंदूर को दे दिया। महान चंद, वह 6 साल के थे जब उनके पिता देवीचंद की मृत्यु हो गई। प्रशासन रामू वजीर के अधीन रहा, जिसकी 1785 में मृत्यु हो गई। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कहलूर पर आक्रमण किया और चौकी हटवाड़ पर कब्जा कर लिया। संसार चंद ने बिलासपुर में धार झिंझियार पर किला बनाया और इसे छत्तीपुर कहा जाता है। उनके शासनकाल के दौरान गोरखा बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। इनका मुख्यालय गढ़वाल में था। राजा महान सिंह ने कांगड़ा शासक संसार चंद के विरुद्ध सहायता के लिए अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया। 1805 में महल मोरियों में अमर सिंह थापा की कमान के तहत गोरखा सेना ने संसार चंद को हराया था। राजा खड़क चंद, उनका शासनकाल बिलासपुर के इतिहास के सबसे काले पन्ने के रूप में चिन्हित किया गया।
एक विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व उनके चाचा जगत चंद ने किया, जिन्होंने बाद में राज्य की गद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा जगत चंद खड़गचंद की 2 रानी में से एक गर्भवती थी। जब उसके पति की मृत्यु हो गई और उसने अपने मायके सिरमौर में एक बेटे को जन्म दिया, राजगद्दी वापस पाने के लिए रानी एक सेना के साथ बिलासपुर लौट आई। राजा जगत चंद हिंदूर भाग गए। बाद में अंबाला और हिंदूर की राजा की मदद से उन्हें राजा के रूप में बहाल किया गया। राजा हीराचंद 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। उनके काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कर सुधार लाया और कर कम किए। 1882 में उन्होंने अपने बेटे टिक्का अमरचंद के साथ शिमला का दौरा किया। राज्य जाते समय रास्ते में राजा को गंभीर बीमारी हो गई और महल में उनकी मृत्यु हो गई। अमरचंद 1885 में उन्होंने राज्य के सभी साहित्यिक स्रोतों का देवनागरी लिपि में अनुवाद करवाया। राजा विजयचंद वह 1889 में राजा बने। उन्होंने न्यायिक प्रणाली में सुधार लाए, अदालती शुल्क की व्यवस्था शुरू की और पहली बार गैर न्यायिक टिकटों की शुरुआत की गई। उन्होंने बिलासपुर में रंग महल का भी निर्माण करवाया। राजा अनंत चंद फरवरी 1927 को वह गद्दी पर बैठे। उन्होंने बेगार और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया। उन्होंने भारतीय डोमिनियन में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त 1948 को बिलासपुर को पार्टी सी राज्य बनाया गया और 12 अक्टूबर 1948 को राजा अनंत चंद को पार्टी सी राज्य का पहला मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया और वे 1 अप्रैल 1949 तक बने रहे। श्रीचंद छाबड़ा दूसरे मुख्य आयुक्त बने। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को एक नए जिले के रूप में हिमाचल में मिला दिया गया। राजा अनंत चंद संविधान सभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने बिलासपुर अतीत, वर्तमान और भविष्य शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। अक्टूबर 1983 में लंदन में उनका निधन हो गया। उनके पुत्र राजा कृतिचंद 1983 में राजा बने, जिनकी 2013 में मृत्यु हो गई। राजा शुभेंद्र चंद उन्होंने 2013 में अपने पिता की जगह ली और बिलासपुर पैलेस जीता। इकॉनमी ऑफ बिलासपुर। बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मत्स्य पालन प्रजनन फार्म 1962 ईस्वी में स्थापित किया गया था। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा बिलासपुर में स्थित है। पशु रोग नियंत्रण कक्ष स्वारघाट में स्थित है। पहला बैंक ऑफ बिलासपुर 1944 ईस्वी को बिलासपुर में स्थापित किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की पहली शाखा 1956 में बिलासपुर में स्थापित की गई थी। एक पशु प्रजनन केंद्र कोठीपुरा बिलासपुर में स्थित है। रघुनाथपुर में विरोजा फैक्ट्री है। बरठी में नवोदय विद्यालय है। बिलासपुर के कंदरौर में एशिया का सबसे बड़ा पुल है, जो 1959 से 1964 ईस्वी के बीच सतलुज नदी पर बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। बिलासपुर सिलापड़ ब्रिज, गमरोला ब्रिज, घाघस ब्रिज, जो कि NH-21 पर अलीखड़ के ऊपर स्थित है। टेम्पल्स एंड फेयर। टेम्पल्स बाबा बालकनाथ मंदिर बिलासपुर के शाहतलाई में स्थित है। गुग्गा भटेर में गुग्गा मंदिर है। गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और रंगनाथ मंदिर भी बिलासपुर में स्थित हैं। धौलरा में नाहर सिंह मंदिर है। पीर प्याणु में लखदाता मंदिर है और नैना देवी मंदिर नैना देवी में स्थित है। फेयर। नलवाड़ी मेले की शुरुआत 1889 में W गोल्डस्टीन ने की थी। यह मेला एक पशु मेला है जो मार्च अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है। नलवाड़ी मेला पहले सांडू के मैदान में आयोजित किया जाता था, लेकिन भाखड़ा बांध बनने के बाद यह लुहणू मैदान में शुरू हुआ। गुग्गा मेला गेहड़वी में आयोजित होता है। हटवाड़ में बैसाखी का मेला लगता है। गुग्गा नौमी मेला नगरौन में आयोजित किया जाता है। धन्यवाद।